Good morning students. I am Namita Seth welcomes you in BBVN online classes and we were discussing a chapter Should Wizard Hit Mommy और उस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि एक बेसिक सी स्टोरी है दैट द फादर जैक एक्चुअली यूज्ड टू नरेट to his daughter Joe, and the basic story was that he used to talk about an animal Roger, है ना. तो Roger कोई भी एनिमल हो सकता है. फिर दैन ही हैड सम प्रॉब्लम, तो वो एक वाइज आउल के पास जाता है. दैन द वाइज आउल सजेस्टेड हिम टू गो टू द विजार्ड द magician, and the magician he took the pennies, he demanded some pennies from him, and then he used to sort out his problem. Okay, so that was a basic tale that Jack used to narrate to Joe. Now let's see actually what happens in this story, that the Roger skunk. Now this time he had taken an animal that was skunk, and this time Roger skunk, he was actually suffering from awful smell, and he went to wise owl and he suggested him to go to the wizard. So the wizard actually was eager to sort out his problem and to transfer his awful smell to the smell of roses. Okay, now let's see what happens next. He paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostril, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide noseless grin, an expression in which Jack was startled to recognize his wife finging pleasure at cocktail parties. And all of a sudden he whispered, the whole inside of the wizard house was full of smell of roses, roses. Roger Fish cried, and the wizard said, very cranky, that will be 7 pennies. So जो विजार्ड है उसने मैजिक स्पेल किया, मंत्र बोला, और उसके बाद में एक मैजिक हुआ जिससे कि अब क्योंकि जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है पूरी स्टोरी में, तो वो अपने उसके साथ में अपने बड़े एक्सप्रेशंस दे रही है और एकदम से मैजिक होता है, और जो विजार्ड का हाउस है वो रोजेस की स्मेल से फुल हो जाता है. यानी कि जो रॉजर स्कंक की जो स्मेल है वो किस में ट्रांसफ़र हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है रोजेस की स्मेल में, और उसको डिमांड करता है वो 7 पेनीज़ की कि आप मुझे 7 पेनीज़ दे दीजिए. डैडी वॉट, रॉजर स्कंक, यू सेड रॉजर फिश. अब क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है स्टोरी और इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व है जो स्टोरी में, कि उसने ये बात भी पकड़ ली कि उनके जो फादर हैं जैक, उन्होंने गलत वर्ड बोला है, रॉजर फिश बोल दिया, जबकि यहाँ एनिमल कौन सा है, रॉजर स्कंक है. Yes, skunk, you said Roger Fish. Wasn't that silly? Very silly of your stupid old daddy. Where was I? Well, you know about the pennies. तो आप क्या pennies के बारे में जानते हो? Say it. Okay, Roger Skunk said, but all I have is 4 pennies. सो अब वो जब विजार्ड उससे पेनीज़ की डिमांड कर रहा है, तो रॉजर स्कंक जो है वो बोलते हैं कि लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 4 ही पेनीज़ हैं. एंड ही बिगेन टू क्राई. जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसेरिटी. अब जो को रोना आ गया कि उसके पास तो 4 ही पेनीज़ है रॉजर स्कंक के पास में, और विजार्ड 7 पेनीज़ मांग रहा है, तो वो बाकी के पैसे कहाँ से लाएगा. दिस अनॉयड जैक. डाउनस्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रम्बर्ड. अब जो जैक है वो चाहता है कि जल्दी से स्टोरी ख़त्म हो, जिससे कि वो नीचे अपनी वाइफ को हेल्प करने जाना चाहता है, लेकिन जो उस स्टोरी को और ही ज़्यादा आगे बढ़ा रही है, एलोबरेट कर रही है, तो जैक को फिर से नीचे से कुछ चेयर की आवाज़ें आती हैं, कुछ फर्नीचर की ड्रैगिंग की आवाज़ें आती हैं, और उसे फिर से याद आता है कि एक्चुअली ही हैड टू गो टू help his wife, and that is why he wanted to finish the story as soon as possible. Clary should not move heavy things. She was 6 months pregnant. It would be their 3rd. So Clary जो Jack की wife हैं, she was 6 months pregnant, and Jack was very much worried about her because it was their 3rd baby, and he did not want that Claire should actually move heavy things, है ना. So because of her safety only वो चाहते थे कि स्टोरी जल्दी ख़त्म हो और वो अपनी वाइफ की हेल्प करने जाएं.
So the wizard said, "Oh, very well. Go to the end of the lane and turn around 3 times and look down the magic well, and there you will find 3 pennies. Hurry up." So Roger Skunk went to the end of the lane and turned around 3 times, and there in the magic well were 3 pennies. So he took them back to the wizard and was very happy and ran out into woods, and all the other little animals gathered around him because he smelled so good, and they played tag, baseball, football, basketball, lacrosse, हॉकी, सॉकर एंड पिकअप स्टिक्स. सो अब विजार्ड जो है उसने वो पैसे उसको बताया कि आपको पैसे कहाँ मिलेंगे. तो उसने बताया कि एक मैजिक वेल है, वहाँ पे आप जाओ और 3 राउंड्स लो और आपको वहाँ 3 pennies मिलेंगी. तो वहाँ पर रॉजर स्कंक जाता है, 3 राउंड्स लेता है और उस मैजिक वेल में से 3 pennies निकाल कर विजार्ड को दे देता है. और अब वो बड़ा खुश है, बहुत ज़्यादा अपने जो उसके जो क्रीचर्स हैं, स्मॉल क्रीचर्स, उसके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ खेल रहा है, बहुत सारे गेम्स वो खेल रहा है. वॉट अ पिकअप स्टिक्स. तो उसने जो है वो बोलती है पिकअप स्टिक्स क्या होता है अपने फादर को. शी इज़ आस्किंग. इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स. तो वो बता रहे हैं कि ये गेम होता है जो स्टिक्स के साथ खेला जाता है. लाइक द विजार्ड्स मैजिक वॉन्ड. क्या कैसी स्टिक्स होती है, जैसे विजार्ड की मैजिक वॉन्ड जो जादुई छड़ी होती है वैसी स्टिक्स होती हैं. Kind of. And they played games and laughed all afternoon, and then it began to get dark and they all ran home to their mommies. तो बोलते हैं कि ठीक है, उसी तरह की कुछ होती है. फिर वो बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, बहुत हंसते हैं उस आफ्टरनून. और जब अंधेरा होने वाला होता है तो ऑल द क्रीचर्स दे यूज टू गो टू देयर होम टू देयर मॉमीज़, है ना, सब अपनी मम्मी के पास चले जाते हैं. Jo was starting to fuss with her hands and look out of the window. अब जो है वो एक्चुअली अपने हैंड से कुछ कर रही है और वो विंडो की तरफ बाहर देख रही है. क्यों? क्योंकि अब उसे ये पता चल गया कि स्टोरी एंड हो चुकी है, रॉजर स्कंक की जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो चुकी है. तो वो अब अपने डैडी को इग्नोर कर रही है क्योंकि स्टोरी फिनिश हो चुकी है और वो बाहर की तरफ देखना स्टार्ट हो गई. At the crack of the day that showed under the shade, she thought the story was all over. Jack did not like women when they took anything for granted. अब जैक को बिल्कुल ऐसी लेडीज़ पसंद नहीं है जो कि हर एक चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड करती है. मतलब उसका मतलब निकल गया तो शी स्टार्टेड स्टेयरिंग आउट ऑफ द विंडो और पीपिंग आउट ऑफ द विंडो. जबकि जब स्टोरी चल रही थी तो शी वॉज ऑल एंड ऑल डिस्टर्बिंग जैक. ओके, सो उसे ये पसंद नहीं आया एंड ही लाइक्ड देम एप्रीहेंसिव हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स. नाउ जो आर यू लिसनिंग. तो फिर उसे लगा कि अब कुछ मिस्ट्री क्रिएट करनी चाहिए और उन्होंने बोला कि जो क्या तुम लिसन कर रही हो. मतलब वो अटेंशन चाहते थे अपनी बेटी का. Yes, because this is very interesting. Roger Skunk's mommy said, "What's that awful smell?" अब उस स्टोरी को वो आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं, हाँ ये स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है. बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि रॉजर स्कंक की मम्मी क्या बोलती है कि ये ऑफल स्मेल कहाँ से आ रही है, अब ये बैड स्मेल कहाँ से आ रही है जब रॉजर स्कंक अपने घर जाता है. What? And Roger Skunk said, "It's me, mommy. I smell like roses." और Roger Skunk बोलते हैं नहीं, awful smell नहीं है. This is the smell of roses. And she said, "Who made you smell like that?" And he said, "The wizard." And she said, "Well, of all the nerve, you come with me and we are going right back to that awful wizard." और वो बोली किसने आपको ये awful सी स्मेल दी है, रोजेस की स्मेल को क्या बोल रही है, बड़ी awful सी स्मेल है, बड़ी गंदी सी बैड स्मेल है. चलो उस विजार्ड के पास फिर से चलते हैं और तुम्हारी वो जो स्मेल है वापस हम लेके आते हैं. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैप्पी लर्निंग.